Good morning, class 10th. Today we are going to start new chapter, statistics, chapter 14. Okay, you can see the definition of statistics. It deals with collection, organization, presentation, analysis and interpretation of the data. Okay, here the word comes data. What is data? It is the collection of information of specific topic or specific things. So we may write here, it is the collection of specific information in numerical form. Okay. It can be categorized into two parts: primary and secondary. Okay, primary data and secondary data. What is the meaning of primary data? If the investigator collect all the data himself, so that data is called primary data, and if the investigator collect the data from other resources, so that data is called secondary data. Okay, we may also categorize in different pattern like raw data and organized data. Organized data. Okay, raw data, it means when the investigator collect the data in original form, so that data is called raw data, and when the investigator organize that data or arrange that data in ascending or descending order or in tabular form, so that data is called organized data. Okay, it may also differ like ungrouped data or grouped data. What is the meaning of ungrouped data? When the number of data is smaller, then we may form tabular form like histogram, okay, bar graph, etc. in ungrouped form. But the number of data is huge, the large, so and at that time we will use grouped frequency distribution table. In this table we manage the class intervals. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, डेटा को किस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। जो पहला मेथड है वो है बार ग्राफ, और बार ग्राफ का इस्तेमाल होता है अनग्रुप्ड डेटा के लिए या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए। ओके, histogram is used for grouped frequency distribution table. Then frequency polygon, then cumulative frequency curve, जिसे हम ऑजी कर्व भी बोलते हैं, ये नया टर्म रहेगा इस बार। पाई चार्ट, इसको आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। सो दीज आर द मेथड टू शो द डेटा इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, आई होप you can or you have done many of them like bar graph, histogram, pie chart in previous classes. Okay, now you can see here measure of central tendency. जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ड होता है एवरेज पे। हम इसे फ्लो चार्ट के थ्रू कैटेगराइज कर सकते हैं, एक मैथमेटिकल एवरेज, एक पोजिशनल एवरेज। ओके, मैथमेटिकल एवरेज में आप देख सकते हैं अर्थमेटिक मीन,
ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इसमें से ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आप सीनियर क्लासेस में देखेंगे। क्लास 10 में हम लोग अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना सीखेंगे डिफरेंट मेथड से, लाइक डायरेक्ट मेथड, ओके, डेविएशन मेथड, एज्यूम मीन मेथड जिसे शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, ये सारे मेथड्स हम लोग देखेंगे। इसके बाद इधर आ जाते हैं। इधर आप देख रहे हैं एवरेज कैटेगराइज किया गया पोजिशनल फॉर्म में। तो पोजिशनल फॉर्म में आप जब डेटा को अरेंज कर लेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वहाँ से आपको जो है कि दो पोजिशनल एवरेज पता चलेगा। एक है मीडियन, दूसरा है मोड। मीडियन को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोड को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, now you can see arithmetic mean of continuous frequency distribution table. Okay, in continuous frequency distribution, the mid value of various class interval are taken as variable x1, x2, x3, etc. etc. Okay, how will we find mid value? It is very easy. Mid value जिसे हम क्लास मार्क भी बोलते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ओके, इस तरीके से हम मिड वैल्यू को पता कर लेंगे। नाउ यू कैन सी द मेथड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन। x bar represent arithmetic mean. There are three methods we will use in particular exercise. Direct method, shortcut method, it is also known as assume mean method, and the last one is step deviation method, okay, for finding the arithmetic mean. Here the formula has also written direct method, x bar is equal to sigma fi xi upon the sigma fi, where xi is mid value. Okay, how will we find mid value? Mid value is or can be find easily by the sum of lower limit and upper limit by 2. Another shortcut method, x bar is equal to a plus sigma fi di upon the sigma fi. Okay, और यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोगों ने इस्तेमाल करना है x bar is equal to a plus sigma fi ui upon the sigma fi into h। तो इनको हम लोग क्वेश्चन कर कर समझने की कोशिश करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1। यू कैन सी इन योर बुक। चूँकि क्वेश्चन लंबा है इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाऊँगा स्पेस की वजह से, तो आप अपनी बुक में क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट awareness program in which they collect the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. तो यहाँ पे ये नहीं बोला है कि आप जो है किस मेथड से जो है फाइंड करेंगे। नीचे लिखा विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट मीन मेथड से करेंगे। ओके, डायरेक्ट मेथड। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म को बना लेना है। टेबुलर फॉर्म में नंबर ऑफ प्लांट्स यानी क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या क्या है? 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14. ओके, इसके बाद नंबर ऑफ हाउसेस जिसे हम fi से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ हाउसेस 0 to 2 में 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ओके, ये नंबर ऑफ हाउसेस हैं। इनको हम यहाँ पर सम कर लेंगे। सम का साइन क्या? सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब सम ऑफ दी कॉलम। ओके, इसे सम करेंगे। ऑलरेडी आप देख सकते हैं 20 दिया हुआ था, बट एक बार ऐड भी कर लेते हैं। 9, 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15, 5, 20। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है? हमें
x पता करना है। ओके, तो x I पता कर लेते हैं, यानी मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे पता करेंगे आप? मिड वैल्यू पता करेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ओके, तो 0 प्लस 2 2 बाई 2 1, यहाँ हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 6 बाई 2 3, ऐसे ही बढ़ता जाएगा 5 7 9 11 एंड 13। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और फाइनली आपको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है fi xi। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 आपका 1 होगा, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35 एंड 6 9 जा 54 एंड 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39। और इसको भी हम लोगों ने क्या करना है? ऐड करना है सिग्मा fi xi से। ओके, इसे ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 6 1 7 7 5 12 12 एंड 5 17 4 21 23 एंड 9 23 एंड 9 आपका हो जाएगा 32, कैरी 2 सॉरी 3 3 6 6 एंड 5 11 11 2 13 13 एंड 3 16, so 162 ये आएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? इसके बाद हमें मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकलेगा? x बार इज इक्वल टू, डायरेक्ट मीन मेथड में आपने जो है कि फॉर्मूला देखा होगा कि क्या यूज करना है, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। ओके, fi xi क्या है? ये प्रोडक्ट है फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू कैसे पता करना है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 162 अपॉन में 20। तो आप देख सकते हैं क्या आएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2 81 या 8.1। ओके, 81 या 8.1 समथिंग आना। Therefore, mean number of plant per house is equal to 8.1। मुझे लग रहा है शायद ये स्क्रीन पर नहीं आ पाया है, तो मैं इस साइड में इसको कर देता हूँ। x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो यहाँ पर 162 अपॉन में 20, ये आ जाएगा आपका 8.1। ओके, 8.1 समथिंग ये आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डेटा जो है कम दिया गया है। जब डेटा या डेटा की संख्या कम होगी तो हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, so thank you for watching.